Good morning, students. Today I am going to teach you chapter number 5, States of Matter, part 2. So, the first topic is gas laws, and the first law is Boyle's law. It is also called pressure volume relationship. According to this law, at constant temperature, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure. So, V is proportional to 1 upon P at constant temperature, and or PV equal to constant, where P is the pressure of the gas and V is the volume. K is known as proportionality constant, and the value of K depends upon the amount of gas, the temperature of the gas, and the units of the pressure and volume. Let V1 be the volume of the gas at pressure P1, and by keeping the temperature constant. जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं तो जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग. एंड व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर टू P2, द वॉल्यूम ऑफ द गैस is decreased to V2, and according to this law, P1 V1 equal to P2 V2 equal to constant, or P1 upon P2 is equal to V2 upon V1. Now the next law is Charles' law, and at constant pressure the volume of the given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature. चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं देन वॉल्यूम ऑफ द गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और V upon T equal to constant. Let V1 be the volume of the gas at temperature T1 and at constant pressure. If the temperature of the gas is increased to T2, and then volume will also increase to V2, and so that V1 upon T1 equal to V2 upon T2. And next law, Gay-Lussac's law, and Gay-Lussac's law is also called pressure temperature relationship. इसको हम प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप भी कहते हैं. एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to the temperature. According to this, the P is directly proportional to T, or P upon T equal to constant. Now next is Avogadro's law. Avogadro law, it is called volume amount relationship. इसको वॉल्यूम और अमाउंट की रिलेशनशिप कहते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स. इस लॉ के अकॉर्डिंग डिफरेंट गैसेस के इक्वल वॉल्यूम जो होते हैं, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों सेम कंडीशन होती है सभी गैसेस के लिए, देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a number of moles, n amount of gas, where n is the number of moles of gas. Now Avogadro's constant,
the number of the molecules in 1 mole equal to 6.022 into 10 to power 23 particles. Next is ideal gas. A gas. What is ideal gas? A gas that follows the Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law strictly is called ideal gas. आइडियल गैस क्या होती है? जो कि सभी गैस लॉज का इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, उसको हम कहते हैं आइडियल गैस. एंड रियल gases follow these laws only under certain specific conditions when force of interaction are practically negligible. और रियल गैस, जो हमारे चारों तरफ जो गैसेस होती हैं उनको हम रियल गैसेस कहते हैं. एंड रियल गैसेस केवल स्पेसिफिक कंडीशन में ही इन गैस लॉज को फॉलो करती हैं. नाउ आइडियल गैस इक्वेशन. एंड आइडियल गैस इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट गैस लॉज, Charles' law, Boyle's law and Avogadro's law. And according to the Boyle's law, V is directly proportional to V 1 upon P. And according to Charles' law, V is directly proportional to T. And according to Avogadro's law, V is directly proportional to N, number of moles. So when we summarize these, तो V is directly proportional to NT upon P और V equal to nRT upon P, or we can say PV is equal to nRT. Now the topic is kinetic molecular theory of gases. ये जो काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी है, दिस इज़ बेस्ड ऑन द एज्यूम्शंस एंड द पोस्टुलेट्स. काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी, इट इज़ नॉट द बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, बट ये कुछ एज्यूम्शंस पर बेस्ड है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द फर्स्ट गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल्स. क्योंकि किसी भी गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं. नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम. गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फार अपार्ट, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है. तो दूर होने के कारण जो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल होता है, इट इज़ नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट, गैस कैन ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम. किसी भी गैस को जिस कंटेनर में रखा जाता है वो पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है. एंड नेक्स्ट इज प्रेशर is exerted by the gas due to the collision of the particles with the walls of the container. जो गैस अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है वो गैस पार्टिकल्स के लगातार मूवमेंट से, उनके आपस में कोलिजन से, और जो कंटेनर होता है जिसमें गैस को फिल किया जाता है उसकी वॉल से जो कोलिजन होता है, जो पार्टिकल्स कोलाइड करती हैं, उनकी वजह से उसमें प्रेशर एक्सर्ट होता है. नेक्स्ट, कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक. इट मीन्स कि जब गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं
तो उनमें एनर्जी चेंज नेग्लिजिबल, हम मानते हैं कि उसमें देयर इज़ नो एनर्जी चेंज, एंड दिस इज़ नोन एज द elastic. At a particular temperature, distribution of speed between the gaseous particles remain constant. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो स्पीड होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो स्पीड जो है कांस्टेंट रहती है. And the average kinetic energy of gaseous molecules is directly proportional to the absolute temperature. गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है एवरेज, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. बिकॉज विद वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. नाउ वी कम टू द टॉपिक द डेविएशन फ्रॉम द गैस आइडियल गैस बिहेवियर. कि रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल गैस बिहेवियर क्यों शो नहीं करती हैं, वो क्यों डेविएट हो जाती हैं. तो द रियल गैस, आई टोल्ड यू बिफोर, रियल गैस इट डज नॉट फॉलो द आइडियल गैस बिहेवियर अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. इट इज़ नोन एज रियल गैस. वो गैस जो कि सारे गैस लॉज को फॉलो नहीं करती है, यानी हर टेम्परेचर और प्रेशर पर वो अपना आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती है, उसको हम रियल गैस कहती हैं. एंड नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई डू रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर. ऐसा क्या कारण है कि जो रियल गैसेस हैं जो हमें चारों तरफ दिखाई देती हैं, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दे डू नॉट फॉलो द आइडियल गैस बिहेवियर. तो द आंसर इज दैट it is because the real gases have force of attraction between their molecules. and क्योंकि रियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, ऑल्दो इट इज़ नेग्लिजिबल बट देयर इज़ सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट, लेकिन उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. एंड जबकि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ ज़ीरो. तो जो लॉज बनाए गए थे वो इसी एज्यूम्शन को माइंड में रखकर बनाए गए थे कि गैसेस के बीच के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो होता है, बट इट इज़ नॉट ट्रू. द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच द रियल गैसेस ओबे द आइडियल गैस बिहेवियर. वो कौन सी कंडीशंस हैं जबकि रियल गैसेस आइडियल गैस बिहेवियर को ओवे करती हैं. द आंसर इज द हाई टेम्परेचर एंड द लो प्रेशर. हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैस बिहेवियर को ओवे करती हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर गैस पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं एंड ऑल्सो अंडर लो प्रेशर पर भी गैस पार्टिकल्स काफ़ी दूर होते हैं, एंड सो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ नेग्लिजिबल उस समय, एंड दे फॉलो द स्ट्रिक्टली ideal gas behavior. Now please like and subscribe my channel to get my latest videos, and please press the bell icon. Thank you students for watching my video. क्या हुआ?